Is everyone back? Is anyone there to join? Okay, we have a couple of minutes. Okay, guys, anyone is having any issues with the last lecture? Throw it out. कुछ पूछना है? Anyone? Guys, किसी को कुछ डाउट है? Hello. No one? No. Okay, fine. So, guys, like we'll start the new topic, but before that, we'll do what? We'll have a look over the last lecture, and I want you guys to note down few things before we start. So, like in last lecture, last couple of lecture, we have covered few topics. The first one was data types, right? The next one which we have covered is variable. Next, we have covered what like we have covered keywords, right? Then we have covered Literals. identifiers, right? And the last one we have covered, that is literals, right? These are the programming practices which every programming language requires. So like according to Java or according to a major programming language, this concept will remain same. इस concept में कोई भी changes नहीं आने वाले हैं, ठीक है? So we'll go ahead and we'll note down each and everything. So I hope you guys are ready with your notebooks. Yes. Should we go ahead? Yes. 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 Okay. So guys, note down first topic, that is data types. So write down the definition of data types. So data types. Are you guys ready? Yeah. Yes. Go ahead. Yes. Okay. So write down the definition for data types. Data types. Data types. Data types are used to represent any data or information or variable which is required throughout the program, which is required throughout the program. Correct? Then data types are required, or data types are used to represent type of data or information or variable which is required throughout the program. Then next point, types of data types. How many types of data types that we have? We have Two. two types of Two data types. types, right? The first one is primitive, Primitive. right? Write down the primitive data type. Then you can draw like pie chart as well, जैसा आपको ठीक लगे. And we have non-primitive. Guys, the first you write it down. What is primitive? Primitive क्या होता है? Those who are fixed in nature, right? So that's what it is. So primitive data type का definition आएगा. The data types which are fixed. Data types which are fixed throughout the program. Throughout the program are called as primitive data types. Data types which are
fixed throughout the program or fixed once it is declared. These type of data types are called as a primitive data types. और primitive data types को ही हम क्या बोलते हैं? The next one we have that is keywords. So the next point, primitive में ही next point आएगा. Primitive data types are also called as keywords. Primitive data types are also called as keywords. Done? Guys, okay, Ekta? Yes. Okay, so next thing you have to do कि primitive data types के सब parts हमें declare करने हैं. So like primitive data type कितने parts में divide होता है? 3, right? 3 types. कौन से थे? Integer और numeric, in short numeric, character and boolean. So your next point will be primitive data type is divided into 3 types. Divided into 3 types. और 3 types कौन से होते हैं इसके? Numeric. The first one numeric, second Character. one character, and the last one boolean. ठीक है? Again numeric में भी अलग-अलग parts हैं, right? Integer and float. Integer and floating points, right? Should I draw this again for you guys? Is it required? Guys? No. Not at all, right? No, we'll do it. Okay. So the next, primitive data type को divide कर दो numeric, character and boolean. Again numeric को 2 part में divide कर दो. Integer or floating. Integer and floating point. फिर we have integer और integer में कितने data types हैं? 4. 4. Correct. The first one is byte. B should be small. Second we have short. S should be small. Keywords बोलेंगे तो like every letter should be starting from the small keyword itself. ठीक है? Short के बाद we have int. Last but not the least we have long. Long. Byte का कितना साइज होता है? 1 byte. शॉर्ट का होता है 2 byte. int का that is we have 4 byte. Note it down guys. 8 byte. आज याद रहेगा. 3 महीने बाद शायद ये चीजें भूलना स्टार्ट हो जाती है या फिर 1-2 महीने बाद वो भूल जाते हैं हम लोग. So better you guys note it down. I hope it is done. So if integers are done, then we have a floating points. So floating points में we have float. 2 types. Right? F should be small guys. Float and the size of float is again 4 byte. Okay. And next we have double. Double is of 8 byte. 8 byte. Correct? Note it down. Next we have character है. Character में एक ही डेटा टाइप आता है char जिसका साइज है 2 byte. And boolean में एक ही डेटा टाइप आता है that is boolean that is of 1 bit. So these are the specific data types that we do have in specifically into primitive. Primitive में हमेशा याद रखना ये 8 type of data is very much important. इसमें सबसे ज्यादा हमें यूज लगेगा int, float या फिर double, probably double. फिर हम यूज करेंगे boolean, ज्यादा यूज होता है boolean भी. ठीक है? Not in Java but mostly programming वगैरह जब करोगे तब you will require boolean as well. I hope अविनाश कैरेक्टर का साइज 2 byte है और बुलियन का 2 bit है क्या? नहीं 1 bit बस 1 bit.
कैरेक्टर का बाइट, कैरेक्टर का 2 बाइट एंड बुलियन का 1 बीट, बीट नॉट बाइट, सिंगल बीट, इधर यस और नो या फिर 0 या फिर 1. Okay guys, hope it's done. So you can note it down. Non-primitive का definition इस तरीके से लिखोगे, the data types which are dynamic और ब्रैकेट में लिख दो not fixed. The data types which are dynamic, inside the bracket you can write not fixed are called as non-primitive data types. So anyone absent today? We don't have Vaishnavi, we don't have Shirley, we don't have guys, done. Again non-primitive के बहुत सारे data types है, but you can note it down. Array, we have string का S capital, array में A small भी लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Array, then we have class. There's so many, but for time being you can note this down. Array, string, class. These are more than enough. और non-primitive में second point ऐसे लिखोगे, non-primitive are also called as identifiers. Right? If primitive data types are called as keyword, then non-primitive को हम क्या बोलेंगे? Identifiers. Siddharth, you are joining for the very first time? this is first day. Okay, fine. So, like, note this down. You'll be having a recording of this session. अगर उसको देख के भी नहीं समझेगा, you can reach out to me. हम इसको थोड़ा सा revise कर लेंगे, ठीक है? Yeah. Just a kind of overview. Okay. ठीक, sure. Guys, done? So the next topic, I hope it is done. So like we have next topic, that is variables. So variable का definition लिखो guys. Variable. Second we have a variables. Variables का definition क्या लिखोगे? Anyone? क्या आएगा variable का definition? Guys, speak up. Variables are identical words. Okay. Or why we require variables, guys? Store data. To store data. Store value. Correct. And one thing I show to you, whenever we declare variable, तो variable क्या करता है? एक memory address को पॉइंट करता है. Yes. For example, I am declaring int a equals to 10. I already told you, we already seen that int is a data type, correct? This a is a variable, and this a is pointing to one specific memory location, and this is the basically value or a literal in our word. So जब भी a को बोलेंगे तो a वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, a किसको रिप्रेजेंट करेगा? एड्रेस को, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा, राइट? So the simple definition of variable, you will note it down. Variables are piece of memory, just a piece of memory हम ऐसे बोल सकते हैं. Variables are piece of memory. Which are required
which are required to store specific type of data. Which are required to store specific type of data. And what do we mean by specific type of data? मतलब जब अगर A है, A अगर किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो इस मेमोरी लोकेशन में कौन से टाइप का डेटा रहेगा ये हम पहले ही डिक्लेयर करते हैं. Am I correct? Yes. Yes. Whenever जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम बता देते हैं कि वेरिएबल मेरा कौन से टाइप का है और उसमें कौन से टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा. ऑल क्लियर? Yes. Okay, चलो. I hope it's done. So if it is done, your next topic is syntax for declaring variable. And you know it very well. We have seen yesterday कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है. And if it is clear to you, then we can note down our syntax. Syntax can be in two ways. Syntax के दो तरीके हो सकते हैं. The first one is only variable declaration. And the second one we have variable declaration and initialization. Variable declaration and initialization. So variable declaration and initialization दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं int a, this is the only declaration, correct? And on the next line a equals to 10, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको हम बोलेंगे initialization and इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Declaration, correct? Yes. You can combine both these steps in a single line as well. int a ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसी के आगे इक्वल्स टू और उसी के आगे हमने 10 वैल्यू दे दिया, तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. करेक्ट? Note it down the syntax. We can take one more data type as an double. Let's take an example of double d equals to 3.14, let's say. And यही का अगर हमें उससे लेना है तो सेम वे डबल d equals to 3.14, right? So that's all. ये इतना ही है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. आई होप यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आ गई है सबको. सर ये वाला पार्ट थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, सिंटैक्स के बाद वाला. कौन सा ये वाला वेरिएबल डिक्लेरेशन? ओके, सिंटैक्स से आगे. ओके. सो सिंटैक्स मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं ना, कि आप एक ही लाइन में कर सकते हो या फिर अलग-अलग लाइन में कर सकते हो. तो जो कल हमने कवर किया था वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब क्या है? जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम मैं बोल रहा हूँ डेटा टाइप मैं ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रहा हूँ int, एंड int के आगे मैं क्या कर रहा हूँ? a, मेरा टाइप ऑफ वेरिएबल इज a एंड सेमीकोलन. अगर मैंने सेमीकोलन दे दिया इट मींस कि मेरा लाइन वहीं पे खत्म हो गया. तो इस लाइन का मीनिंग है कि सिर्फ मेरा डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, बट वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया गया है. करेक्ट? एंड द नेक्स्ट लाइन इसी a को हमने a equals to 10 ये वैल्यू इनिशियलाइज किया, इनिशियल वैल्यू उसको असाइन करा, सो उसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन. करेक्ट? ये दोनों चीज अगर आपको अलग-अलग लाइन में नहीं करनी है, यू कैन डू इट लाइक दिस. वेरिएबल डिक्लेरेशन int a, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, उसी लाइन पे इक्वल्स टू 10, उसी लाइन पे आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही स्टेप में कर दिया. द सेम वे यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया डबल d सेमीकोलन, नेक्स्ट लाइन पे d इक्वल्स टू 3.14. ये मैंने इनिशियलाइजेशन अलग किया और डिक्लेरेशन अलग किया, बट व्हाट आई कैन डू दिस ऑन अ सिंगल लाइन इटसेल्फ, दैट इज डबल d इक्वल्स टू 3.14. ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन.
करेक्ट? कोई भी यूज करो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही यूज करना है फिर यही यूज करना है, बट जनरली आप दो लाइन को एक ही लाइन में कंबाइन करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, राइट? आदित्य, इज इट क्लियर? आदित्य, एनी डाउट? ओके गाइस, एनीवन? किसी को डाउट इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में? No. ओके श्योर, चलो लेट्स मूव अहेड। ऑलरेडी कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स के डेफिनेशन हो गए, लिटरल्स का ऐसा अविनाश ये सिंटैक्स अपना जो अपन सेमी कॉलन लिख रहे थे इसके कोई दूसरा भी वो यूज कर सकते हैं क्या? ये वाला नो मीन आई मीन ये जो अपन इंटीजर ए के बाद जो सेमी कॉलन लिख रहे हैं, हाँ, उसकी जगह कोई दूसरा वो भी यूज कर सकते हैं क्या? सेमीकोलन का ही मीनिंग है कि वो लाइन को इंडेक्स करेगा, as we have discussed yesterday कि ये सेमीकोलन आपके पर्टिकुलर लाइन स्टेटमेंट को कंप्लीट कर देगा, ठीक है? Then should we move ahead to the next topic? Yes. Okay guys, so like we have next topic, that is operators. Few topics हमें करने हैं, ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड ऑपरेशन। सुनने में कुछ एक जैसे लगेंगे बट मीनिंग थोड़ा अलग है। we'll start with the topic, that is operators. So मेरे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। Let's say I want to perform certain operations on a data. So that time will be requiring operators. Guys, make sense? Yes. जैसे we have int a, हमारे पास हमने कल एक एग्जांपल देखा था int a, and int a equals to 10, correct? We have int p equals to 20, and we have int c, then we did c equals to a plus b, c equals to a plus b, right? Correct guys? So यहाँ पे we have a का डेटा कितना है 10 और b का डेटा कितना है 20. ऑपरेशन a plus b, that is यहाँ पे 10 plus 20, ये ऑपरेशन होगा और वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी c में. Got it? Yes. Yes guys, I hope ये तो बहुत बेसिक है, correct? So यहाँ पे guys आइडेंटिफाई करो कि like we have used operator, दिख रहा है क्या यहाँ पे? We perform addition operation, right? Operation. So this is nothing but the operator, simple operator. Okay. ठीक है? बोला? Yeah. Clear? So तो जावा में कौन से टाइप ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं? So there are many types of operator. The first one we have arithmetic operator. First we have arithmetic operators. First we have arithmetic operation. और सिंपल है arithmetic, मतलब वो arithmetic कैलकुलेशन करेगा। लाइक हम जनरली मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं गाइस? एडिशन करते हैं, Addition, subtraction, multiplication. क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं, और क्या करते हैं? Multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, जैसे आप देखोगे तो कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है हमारे x, what x कंसीडर होगा। सो हियर वी हैव टू यूज एस्टेरिस्क, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव डिवीजन, ठीक है? वी हैव अ डिवीजन ऑपरेशन। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? एनीवन इज हैविंग आइडिया थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स के बारे में? ओके, मॉड्यूलस पता रहेगा, तो मॉड्यूलस के लिए हम लोग एस्टेरिस्क मार्क का यूज, ठीक है? एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी नॉट एस्टेरिस्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे फॉर मॉड्यूलस। नेक्स्ट वी हैव plus operator, that is increment operator, and we have minus operator, that is decrement operator,
ठीक है. So this is your addition, correct? Addition, subtraction, multiplication, division, ये तो करेक्ट है. मतलब सबको क्लियर रहेगा. I'll write it down. This is modulus. Modulus. This is increment. And this is decrement. Nice. That's it. I mean, guys, आवाज आ रही है सबको कि कुछ एको वगैरह आ रहा है? क्लियर है. It's clear, right? So ये types of operators है that we have: addition, subtraction, multiplication, division, modulus, increment and decrement. ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है. जैसे कि guys इसको 1 by 1 कवर अप करता है. एडिशन तो सबको पता है, am I correct? Subtraction, multiplication, इसमें किसी को कंफ्यूजन? Anyone? Simple logic है guys. Then we have a division and modulus. इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है कि डिवीजन कैसे वर्क करता है और मॉड्यूलस कैसे वर्क करता है. थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन आएगा. अगर गाइस बोर हो जाए तो लेट मी नो. सो जैसे गाइस आई हैव नंबर 10 and I am dividing this number by 2. करेक्ट? मेरे पास 10 नंबर है, मैं उसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं. सो 2 5s are 10. My remainder will be 0. करेक्ट? तो जब मैं अगर डिवीजन ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, ऑलवेज इट इज गोइंग टू पॉइंट टू द कोशेंट. डिवीजन किसको पॉइंट करेगा? कोशेंट. कितना आया हमारा यहाँ पे? 5. सो आवर रिजल्ट विल बी 5 अगर हमने डिवीजन ऑपरेशन यूज किया है. और अगर हमने कौन सा ऑपरेशन यूज किया है? मॉड्यूलस. मॉड्यूलस. So for the modulus, our answer should be 0. 0. Remainder is modulus. It is going to point to the remainder. Okay? Guys, make sense? Yes. जब भी हम डिवीजन और मॉड्यूलस को कंपेयर करेंगे तो एवरी टाइम डिवीजन ऑपरेशन इज गोइंग टू पॉइंट टू द कोशेंट. कोशेंट को ही पॉइंट करेगा वो. एंड अगर हम मॉड्यूलस की बात करेंगे तो मॉड्यूलस हमेशा किसको पॉइंट करेगा? रिमाइंडर को. ठीक है गाइस? Yes, clear. क्लियर है ना? जैसे लेट्स से आई हैव 21. I have 21 and I'm dividing 21 by 5. तो गाइस मेरे को बताओ, अगर मैं डिवीजन ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो व्हाट शुड बी माय आंसर? एंड अगर मैं मॉड्यूलस यूज कर रहा हूं तो व्हाट शुड बी माय आंसर? डिवीजन में सर 4 आएगा और मॉडुलस में 1. मॉडुलस में 1. करेक्ट. अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 20. So my remainder will be 1. Correct? So in this case 4 को represent, अगर हम division बोलेंगे तो division is going to represent quotient, that is 4. और अगर हम remainder को बात करेंगे तो remainder basically मतलब modulus points to the remainder, so my answer will be 1. ठीक है? That's all. यही है सिंपल सा आंसर इसका. ठीक है guys? Next we have increment. Increment मतलब क्या guys? Let's say I have declared integer a equals to 5. a की initial value कितनी है guys? 5. Now I'm writing this a plus plus. What I'm writing? a plus plus. तो a की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी? 5 प्लस, और ये प्लस का मीनिंग होता है 1. तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस? नाउ 6. ठीक है? सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे इनिशियल वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीज करेगा. एंड सिमिलर वे डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. इफ माय वैल्यू इज a का वैल्यू इज 5 एंड आई एम राइटिंग a माइनस माइनस, सो इस केस में a का नेक्स्ट वैल्यू विल बिकम 4. Am I correct? Yes. Makes sense? अगर
अविनाश अगर ए प्लस प्लस ट्रिपल बार रहता तो 7 हो जाता ना। वहां पे आपको एरर आ जाएगा। सो द इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब प्लस प्लस, ठीक है। ओनली वन इंक्रीमेंट। ट्वाइस, अच्छा एक बार अगर प्लस रहेगा तो हाँ, तो इसमें ये बना है ना एडिशन ऑपरेटर। और 2 बार रहेगा तो, और 3 बार रहेगा तो 3 बार नहीं हो सकता, 2 बार हो सकता है, ठीक है। 3 बार नहीं आएगा तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। मतलब वो सिंटैक्स एरर क्या होता है, बिल्कुल आप जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब आपको एरर दे देगा वो, ठीक है। Yeah, one doubt, Avinash. यस बताइए। Yeah. Can you show this division and modulus in the syntax, like if possible? ओके, इन सिंटैक्स फाइन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ठीक है। सो गाइस लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट। हम मॉड्यूलस एंड रिमाइंडर को यूज करते हैं। जैसे कि लाइक आई हैव इंटीजर a equals to 10 and I have integer b equals to 5, correct? So now I'm storing this result int c. Now in this case I want to perform action or like operation. So c equals to, let's say I'm dividing a divided by b. If I'm doing this, so ये क्या होगा, अभी यहाँ पे a divided by b है, so a that is 10 को डिवाइड कितने से किया जाएगा गाइस, 5. So your answer will become how much? देखो ये 10 है, 10 को मैं डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ, so 5 2s are 10, my remainder will be 0. So in this case डिवीजन अगर ऑपरेशन है तो रिमाइंडर के बारे में सोचा नहीं जाएगा, किसके बारे में सोचा जाएगा, ओनली क्वोशिएंट। आंसर कितना आ गया गाइस, 2. So this is my value for the c. Okay, is it clear? Yes. Right, and the similar way यहाँ तक तो हम सेम आए थे, but here somewhere c equals to what we have to do, a modulus a mod of b, a mod of b. So a mod of b में same way guys operation होगा, but the remainder is 0. So in this case c will become 0, ठीक है। Okay, thank you. सर ये जो यस इंक्रीमेंट जो आपने अभी सिखाया, इंक्रीमेंट में एक से ही इंक्रीमेंट होगा हमेशा या डिक्रीमेंट होगा? यस वो फोलियो हॉर्सेस लाइक इसको डिस्कस करते 2 मिनट में। फिलहाल ये मॉड्यूलस एंड ये डिवीजन एंड मॉड्यूलस क्लियर है गाइस? Yes. Yes. So if it is clear, is anyone having doubt in division and modulus? तो पूछ लो so that we can cover this increment. सर डिवीजन और मॉड्यूलस में तो नहीं है, लेकिन ये जो आपने सिंटैक्स लिखा था int c और वो फिनिश करके नीचे c इक्वल टू, हाँ या that's there, मतलब जैसे कि अभी मेरे को ये ऑपरेशन करना है, a and b पे ऑपरेशन करना, तो उसकी वैल्यू भी तो स्टोर करनी पड़ेगी। ये रिमाइंडर आ रहा है या मतलब ये क्वोशिएंट आ रहा है फिर रिमाइंडर आ रहा है, ये किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा मेरे को आदत से। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे आपने पहले बोला था ये int c जो है, ये int c और डिक्लेयर और इनिशिएट एक ही साथ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बट ये अगर आपको ऐसे करना है सो यू कैन डू इट लाइक दिस, a equals to a divided c equals to a divided by b, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके ओके, इट्स अप टू यू। एज आई सेड कि डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन आप एक साथ कर सकते हो, बट कभी-कभी सर्टेन ऑपरेशन में हमें प्रॉब्लम होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम जाता है। सिर्फ अगर इनिशियलाइजेशन तो कर लो, बट इफ इट इज ऑपरेशन इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। दैट्स व्हाई आई वेंट टू द नेक्स्ट लाइन, यहां पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करा। ओके, क्लियर आदित्य? यस सर, यस। ओके नाउ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सॉरी मॉड्यूलस एंड डिवीजन अगर क्लियर है तो वी हैव इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का सिंपल सा लॉजिक है गाइस,
डोंट वरी एट ऑल, मतलब ये कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल सा थिंग है। इंक्रीमेंट एक से ही इंक्रीज करेगा और डिक्रीमेंट एक से ही डिक्रीज करेगा। सो इंक्रीमेंट, अगर आई एम सेइंग, लेट्स से इफ आई एम डिस्कसिंग इंक्रीमेंट, तो फिलहाल के लिए इंक्रीमेंट को समझो। तो इफ लेट्स से n a इक्वल्स टू, जैसे हमने 5 लिया था, और अगर हम a प्लस प्लस कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी माय आंसर? व्हाट शुड बी माय आंसर? तो इन a है, a का इनिशियल वैल्यू कितना है गाइस? 5। तो a प्लस प्लस, तो ये आपको प्लस प्लस दिख रहा है, बट इस जो सेकेंड वाला प्लस है इसका मीनिंग 1 है। तो ये ऐसे हो जाएगा a प्लस 1। सो a का इनिशियल वैल्यू इज हाउ मच? 5। सो 5 plus 1, that will become guys Clear. Yes. आदित्य, अगर मेरे को करना है, मेरे को 2 से इंक्रीमेंट करना है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट a plus 2, ठीक है? ओके आदित्य, क्लियर? यस सर। ओके, सो मैं अभी तक तो इतना ही समझो। अविनाश, a प्लस प्लस 3 में एरर आएगा ना? a plus, yes, a plus plus 3 में एरर आ जाएगा, बट ओके, थैंक यू। राइट? सो गाइस, कुछ कंफ्यूजन? No. नो। आपको बॉडमास रूल पता रहेगा मैथ्स में? यस। अगर आप श्रुति बॉडमास रूल अप्लाई करोगे तो एरर नहीं आएगा आपको, ठीक है? ठीक है। ब्रैकेट का वगैरह यूज करोगे तो इट विल गिव यू एन आंसर, ठीक है? सॉरी? मतलब ब्रैकेट्स वगैरह आता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ। सर्कुलर ब्रैकेट, फिर वी हैव मल्टीप्लिकेशन का कुछ लॉजिक होता है, डिवीजन का लॉजिक होता है, वो अगर आप वहाँ पे यूज करोगे तो इजी। ठीक। अब आई होप सबको मैथ्स तो बहुत अच्छा लगता रहेगा ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग में, कि वो नहीं लगता था। आई होप मैथ्स शुड बी नाइटमेयर, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हुआ रहेगा ऐसा, है ना? तो प्रोग्रामिंग इज गाइस बेस्ड, मतलब क्या है ना, अनलॉजिकल चीजों को प्रोग्राम बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर लॉजिकल चीजें मैथमेटिकल वगैरह प्रोग्राम क्रिएट करना इट्स वेरी मच इजी। सो ऐसा मत समझो कि आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो मैथमेटिक्स आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेटर ऑन जब आप सिलेनियम सीखेंगे तो यू विल फाइंड कि यार मैथ्स की तो जरूरत नहीं है, और सर्टेन सिचुएशन में लगती है, बट एटलीस्ट फॉर इनिशियल बेसिक अंडरस्टैंडिंग गाइस दिस शुड बी क्लियर। आई होप इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्लियर है, तो उसी तरीके से डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। सो दिस इज गोइंग टू डिक्रीज योर वैल्यू बाय 1, ठीक है? ठीक है गाइस? एंड गाइस इसमें दो टाइप्स आते हैं। जब भी आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की बात करोगे तो यू कैन डिवाइड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। किसी को आइडिया है क्या इसके बारे में? प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। सो कभी भी आप इस तरीके से कर सकते हो, प्री एंड पोस्ट, प्री एंड पोस्ट, सेम दोनों के लिए, इंक्रीमेंट के लिए भी एंड डिक्रीमेंट के लिए भी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्रीमेंट, तो प्री का मतलब क्या है? जैसे ये एक प्लस प्लस दे दूंगा तो दिस विल बिकम प्री, एंड अगर ए के बाद प्लस प्लस दे दूंगा दिस विल बिकम पोस्ट। पोस्ट। सिंपल। सेम वे अगर मैं माइनस माइनस ऑपरेटर, ये ए जो ऑपरेंड है, वेरिएबल है, इससे पहले अगर यूज करूंगा तो ये प्री डिक्रीमेंट हो जाएगा, और ए के बाद अगर माइनस माइनस यूज करूंगा तो दिस विल बिकम क्लियर गाइस?
सर क्लियर what will be the result of एग्जांपल आप एक बार दीजिए ना, प्री का एटलीस्ट। प्री का, ओके। तो ये पोस्ट का विल कम अप जब हम फॉर लूप यूज करेंगे ना, दैट टाइम आई गिव यू एग्जांपल, राइट? फिलहाल के लिए आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कंफ्यूज हो गए तो कोई टेंशन नहीं लेना, विल कवर अप इन नेक्स्ट टॉपिक जब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आएगी। बट हियर आई गिव यू द सिंपल लॉजिक कि प्री एंड पोस्ट कैसे वर्क करता है। लेट्स से आई हैव इंट a equals to 10. Let's say a equals to 10 है, and I'm using a plus plus. I'm using a plus plus. a plus plus मतलब ये पोस्ट है ना? Yeah. So initially अगर आप इस a को प्रिंट करने जाओगे, it will give you an answer that is 10 only. ठीक है? Initially अगर आप इस a लगाएगा सर, अभी तो आपने बोला लाइक अविनाश यू टोल्ड a प्लस प्लस मतलब ये 10 प्लस 1 11 होना चाहिए था। बट गाइस पोस्ट मतलब क्या है? एक प्रोग्राम का इंटरवल एग्जीक्यूट होने के बाद पोस्ट द ऑपरेशन, पोस्ट द एग्जीक्यूशन, ये इंक्रीमेंट होगा, इसको पोस्ट बोलते हैं। बट इफ आई एम राइटिंग प्लस प्लस a, तो प्लस प्लस a विल गिव यू एन 11 आंसर। गाइस थोड़ा सा प्री एंड पोस्ट में कंफ्यूजन होगा भी, तो भी कोई डाउट नहीं रखना, यू कैन आस्क, लाइक वी कैन क्लियर इट आउट। बट इसका थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल जब हम फॉर लूप करेंगे लाइक कमिंग अप लाइक 1 और 2 लेक्चर, तब हम शायद उसको अच्छे से करेंगे। सो द प्री एंड पोस्ट का मीनिंग क्या है? सो द पोस्ट जो होता है, अगर एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, आफ्टर द एग्जीक्यूशन वो इंक्रीमेंट करता है, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। एंड प्री इंक्रीमेंट मतलब क्या है? पहले ही इंक्रीमेंट करके देता है। मेक सेंस? yes कि कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को रहेगा। पूरा कंफ्यूजन है? हाँ थोड़ा है, मतलब क्लियर नहीं है। तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, लाइक इन नेक्स्ट 1 और 2 लेक्चर हम जल्दी ही फॉर लूप पे जाएंगे। जब हम लूप पढ़ेंगे तब आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, तब आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है? फिलहाल के लिए इसको ऐसा समझो, प्री मतलब पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट करता है। नेम में ही है प्री एंड पोस्ट। ठीक है? ओके। एंड सिमिलर वे डिक्रीमेंट भी वैसे ही वर्क करेगा। अगर प्री डिक्रीमेंट यूज कर रहे हो तो अगर a का वैल्यू 10 है तो इनिशियली ही वैल्यू 9 हो जाएगा, बट पोस्ट डिक्रीमेंट में नहीं होगा, वैल्यू 10 रहेगा, 9 नहीं रहेगा पोस्ट में, बिकॉज़ वो बाद में एग्जीक्यूट होने वाला है। am I correct? पूरा ओके। ठीक है? अगर आई एम यूजिंग a माइनस माइनस, सो दिस विल गिव यू एन आंसर दैट इज 10 ओनली। बट अगर मैं माइनस माइनस a यूज कर रहा हूं तो दिस विल गिव मी एन आंसर दैट इज 9। वो पहले माइनस कर देगा, 10 माइनस 1 कर देगा, दैट इज 9। ठीक है? विल कम अप। मतलब ये टॉपिक अगर नहीं समझेगा तो फिलहाल छोड़ दो, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के प्री एंड पोस्ट टाइप होते हैं, और जनरली हम पोस्ट यूज करते हैं। इफ यू रिक्वायर आप प्री यूज कर लोगे कभी-कभी सिचुएशन में। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, मतलब कभी-कभी आप जब इंटरव्यू देने जाओगे, जब फर्स्ट राउंड जब आपका इंटरव्यू का रहेगा, that time this kind of question, I mean they are going to ask you, मतलब ऐसा नहीं है कि integer a equals to let's say 10 है, then integer b equals to 20 है, then int c है, right? So now in c like ऐसे दे देंगे plus plus a, ब्रैकेट में देंगे b plus plus, ठीक है, बाहर और कुछ दे देंगे। सो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस देते हैं। सो विल कम टू दिस टॉपिक कि उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा और आंसर क्या आएगा। विल डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस, बट थोड़ा सा टाइम आप इस टॉपिक को स्किप कर दो, प्री एंड पोस्ट को, कि ये कैसे वर्क करता है इंटरनली। विल डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है? okay गाइस, आई होप बोरिंग नहीं है। no, that's I don't know why. Am I making this lecture very boring? No. No, sir. it's getting No. interesting actually. चलो guys, hope so. And see guys, एक बात याद रखना, our first priority is to crack the interview.
एंड इंटरव्यू क्रैक करना मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर आज के ऑनलाइन टाइम की बात करेंगे हम, लाइक यू हैव हाफ एन आवर 45 और एट मोस्ट 1 आवर का इंटरव्यू होता है फर्स्ट राउंड. मेजरली लाइक एवरेज आई हैव सीन 30 to 45 मिनट्स के इंटरव्यू होते हैं. तो 30 to 45 मिनट में लाइक ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू हार्डकोर प्रोग्रामिंग, बट हाँ वो आपको एक ऐसा सिचुएशन प्री पोस्ट का या फिर कोई सिंपल सा प्रोग्राम दे देगा व्हिच यू हैव टू राइट इट डाउन. नोटपैड ओपन करने बोलेगा, स्क्रीन शेयर करने बोलेगा द इंटरव्यूअर, एंड यू हैव टू राइट डाउन दैट कोड. एंड मार्क माय वर्ड, मैं कुछ आपको प्रोग्राम्स दे दूंगा, कुछ 15-20 प्रोग्राम दे दूंगा दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, और उसमें से ही एक प्रोग्राम आपको आएगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस. वेल प्रैक्टिस थ्रूआउट द टाइम. वो प्रोग्राम क्रैक करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोग्राम गाइस इंटरव्यूअर इज गोइंग टू टेक एन मतलब सिंपल सा वो एक कर देगा कि अगर ये बेसिक सिंपल कैलकुलेशन अगर ये बंदा कर सकता है, if I give him कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट में लेता हूँ, अगर मैं इसको कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दूंगा, ये बंदा इजीली इसको सॉल्व कर लेगा. दिस विल बी द मेंटालिटी ऑफ इंटरव्यूअर. सो दैट्स व्हाई गाइस, एज आई सेड इनिशियली, starting with the programming is bit difficult, but once you are into it, बहुत easy है. ठीक है? So initially first week अगर आपको प्रॉब्लम भी आ रहा है, so देखो like अगर जो चीज टफ होती है वो easily तो अचीव नहीं होगी, right? And programming is not tough. You will find out कि बहुत सारे syntax एरर आ रहे हैं, मैं बहुत सारे मिस्टेक कर रहा हूँ, कभी सेमीकोलन भूल जा रहा हूँ. Yes, over the period of time आप प्रैक्टिस करोगे, and after 1 month 2 month you will be very much you guys should be very much confident about the programming कि कोई भी प्रोग्राम दे दे interviewer, you can you should be able to solve that problem. ठीक है? And especially to those who thinks programming बहुत difficult है, उनके लिए मेरा ये simple सा logic है guys, बहुत easy होता है, कुछ भी difficult नहीं होता. ठीक है? चलो, so the next topic, I mean, is it clear? Arithmetic operators clear है सबको? Yes. Yes. Okay. So guys, arithmetic operator में addition, subtraction, division, multiplication, modulus, increment, decrement, ये याद रखना. फिर we have comparison operator. We have कंपैरिजन ऑपरेटर. तो कंपैरिजन कैसे करते हैं? इसमें तो दो चीजों में कंपेयर करना है. तो जैसे कि लेस देन ऑपरेटर आएगा, करेक्ट? लेस देन और ग्रेटर देन. ग्रेटर देन, Equal to. लेस देन इक्वल से आता है ना, और कौन सा आता है? Greater than. इक्वल्स और क्या? Not Equal to. Not equal to. यस, एक आएगा आपका इक्वल्स टू या फिर इक्वल्स. एक आएगा आपका नॉट इक्वल्स. एक और आ जाएगा आपका नॉट ऑपरेटर. नेक्स्ट आपका कौन सा ऑपरेटर आ जाएगा? नॉट ऑपरेटर. ठीक है? और यही नॉट ऑपरेटर हमने मॉड्यूलस के लिए भी देखा था गाइस. Yes. ठीक है? The same operator you have to use. ठीक है guys, these are the basic comparison operator जो हमें यूज होते हैं. less than, greater than, less than equals to, equals, greater than equals, equals, not equals, and not. Okay, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, सर why you have written like why Avinash you have written equal equal, दो बार क्यों लिखा, एक बार क्यों नहीं लिख सकते, right? So we'll talk about this. अच्छा, किसी को अभी भी कंफ्यूजन होता है क्या कि ये पक्का लेस देन है कि ये लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा लेस देन है, कैसा आइडेंटिफाई करना है? कंफ्यूजन होता है? अगर होता है तो सिंपली होता है, नो इश्यूज, उसमें कुछ गलत बात नहीं है. लेकिन साइन सिंबल्स आइडेंटिफाई करने में ह्यूमन मेंटालिटी थोड़ा सा, मतलब ह्यूमन माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है. बट हमेशा याद रखो कि दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरी कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड है.
आप जब भी लिखोगे, देखो अपने राइट हैंड साइड में, अगर राइट हैंड साइड में इसके एंगल जो बनता है या फिर टू साइड मतलब टू पॉइंट्स अगर राइट हैंड साइड पे है तो दैट इज वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर कि लेस हो जाएगा? Less. greater. लेस Less. जिधर उसका माउथ है उधर ग्रेटर होता है मेरे ख्याल से। ओके लेस देन होना चाहिए, यस सिद्धांत, व्हाट डू यू थिंक? लेस देन होगा फर्स्ट में। गाइस नाउ प्रोग्रामिंग कभी भी हमेशा याद रखो, हम जाते हैं जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं प्रोग्रामिंग में। सो कंपेयर अगर मैं ए इस तरीके से कर रहा हूं, सो नाउ वी हैव ए और बी को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे टू साइड्स किसके पास है? बी के पास, मतलब बी ग्रेटर है, करेक्ट? और एक्चुअली में लेस देन ऑपरेटर है। ये कौन सा ऑपरेटर है? लेस लेस और ये कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन, Greater. करेक्ट? या बस हमेशा याद रखो, अगर प्रोग्रामिंग में टू साइड्स अगर राइट हैंड साइड हो गया तो दैट इज लेस देन, अगर टू साइड लेफ्ट हैंड साइड हो गया तो ग्रेटर देन। सो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स एंड नॉट। कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा बट गाइस सिंपली मतलब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बन जाता है गाइस। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि कौन सा लेस कौन सा ग्रेटर, इवन मेरे को भी होता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल दूं। सो डोंट वरी, विद द प्रैक्टिस यू विल कम टू नो कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है, ठीक है? ओके, सिर्फ लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन याद रखना, लेफ्ट राइट, ठीक है? सो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स, नेक्स्ट इक्वल्स। गाइस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं इंट a इक्वल्स टू 10, तो ये इसका मीनिंग इक्वल्स नहीं है। दिस सिंगल इक्वल्स का मतलब है असाइनमेंट। सिंगल इक्वल्स का मतलब क्या है गाइस? असाइनमेंट। और असाइनमेंट क्या करता है? राइट हैंड वैल्यू को, मतलब ये अगर मैंने कहीं पे असाइनमेंट ऑपरेटर स्पेसिफाई किया है गाइस, तो इन दैट केस राइट हैंड साइड वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? राइट हैंड साइड वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर इनटू द लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे इंट a इक्वल्स टू 10 नहीं है, यहाँ पे इंट मेरा डेटा टाइप है, a मेरा वेरिएबल है और यहाँ पे मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो a नाम का वेरिएबल क्या हो जाएगा? एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करेगा और उसको पॉइंट करेगा। नाउ इस मेमोरी लोकेशन में आई एम गोइंग टू असाइन 10 एज इन वैल्यू। ये 10 वैल्यू यहाँ पे असाइन हो गया, ये इक्वल्स नहीं है। ओके, कंफ्यूजन? मतलब बोलते टाइम सबका हो जाता है कि हम वी आर यूज्ड टू int a equals to 10 ऐसे हो जाता है, बट दिस इज नॉट इक्वल गाइस। अगर सिंगल टाइम इक्वल्स लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है? असाइनमेंट। असाइन इसका मीनिंग क्या है? असाइनमेंट। इन दिस केस असाइनमेंट में क्या होता है? राइट हैंड वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर इनटू लेफ्ट हैंड साइड। ओके, Okay. कंफ्यूजन? नो I'm seeing weird faces Clear. or like weird mind. पूजा कुछ डाउट? समझा कि नहीं समझा? नो सर क्लियर है। क्लियर है? यस ओके, आदित्य एनी डाउट? सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जो इक्वल टू होगा वो यूज कैसे करेंगे हम लोग? ये वाला? हाँ एग्जैक्टली, मतलब यस यस, हम आते हैं उसके ऊपर, ठीक है? कुणाल, असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर है? क्लियर क्लियर कुंदन, क्लियर। शाबाश, यू हैव एनी क्वेश्चन? शाबाश, ओके, फाइन। प्रदीप, इज इट क्लियर? Yes. ओके, टू यू राधिका? Clear, sir. No doubt. ओके ओके, फाइन। सरिता, श्रुति, शुभम? यस सर क्लियर सर। क्लियर सर। श्योर? सिद्धांत, यस क्लियर। आंसर जा रहा है आज के दिन? नहीं, लाइक थोड़ा बेसिक्स पता था ये। Right, yeah. So now this again, guys, I'm telling you one more thing कि जब हम यहाँ पे int declare कर रहे हैं, so int is a data type, a is a variable, और variable क्या होता है? piece of memory होता है,
So A is going to point to the memory location. Am I correct? And इस memory location में value कौन सी assign होगी? जो ये assignment operator equals है, ये equals to sign जो है इसको assignment बोलेंगे. And this assignment जो है वो क्या करेगा? Right hand side value को left hand side में store कर देगा. तो यहाँ पे point कर देगा, store कर देगा, assign कर देगा. ठीक है? Now we'll talk about this. Equals to जैसे आदित्य का डाउट था. Now आदित्य tell me मेरा int a वेरिएबल है and a is 10. I have another वेरिएबल int b 20. ठीक है? और मैं ऐसा बोल रहा हूँ a equals b. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स है. यहाँ पे ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है. This is not going to assign a value to anyone. ये कंपेयर करेगा. यहाँ पे ऐसे आ जाएगा a का वैल्यू 10 आ जाएगा. 10 equals मतलब 10 is equal to 20 है क्या? अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ जाएगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है? तो ये फिर से if not में वगैरह यूज हो सकता So, है. Avinash, basically this will not generate any new number, it will just compare. Yeah, this is going to compare in between two different values. So these are the comparison operator. तो comparison operator कभी भी कोई number add या फिर subtract नहीं करेंगे या फिर new number generate नहीं करेंगे. But whereas arithmetic operator new number is मतलब generate करेंगे. Here only comparison होगा in between two different data or two different variables. True or false, that's it. True or false, yeah. ये less than है, greater than है, इसका आंसर true या फिर false, true or false, true false, everyone. Either it will be true or either it will be false. ऐसा आंसर आएगा. Comparison. एक तो it is correct और either it is false. ऐसा आंसर आ जाएगा. ठीक है? Okay. Anyone is having confusion इसमें equals में guys? देखो, अगर मैंने a equals b किया तो ये स्टेटमेंट में आंसर क्या देने वाला है? False. बट अगर मैंने ऐसे यूज किया a not equals b तो इस केस में क्या हो जाएगा गाइस? ट्रू. ये मेरे को रिटर्न कर देगा ट्रू. मेक सेंस? Yes. दोनों वैल्यू है क्या या फिर दोनों वैल्यू डिफरेंट है क्या, ये हम कंपेयर करते हैं. यस राधिका? No, sir. No doubt. It's clear. गाइस एनीवन? आदित्य नाउ ये क्लियर हुआ क्या आपको? इक्वल हाँ, sir, हो गया. इक्वल्स में डिफरेंस हो गया सर, हो गया. श्योर? यस सर. एनीवन? equals not equals and guys last operator है not. जनरली ये यूज नहीं होता है. इसका यूज करोगे तो मोस्टली वो अरिथमेटिक ऑपरेशन जो था ना मॉड्यूलस वहां पे यूज करोगे आप. ठीक है? Okay. एनीवन? सर लेकिन बाई चांस मतलब अगर हम यूज भी करें हाँ तो ये कैसे मतलब अरिथमेटिक में आएगा, कंप्यूटर में आएगा? तो Because, ये for example- आंसर आपको इधर ट्रू एंड फॉल्स में देने वाला है. मतलब ये नॉट ऑपरेटर है ना, तो ये नॉट ऑपरेटर है तो इसका आंसर विल बी इधर ट्रू या फिर इधर इट विल बी फॉल्स. ठीक है? विल कम अप टू दैट टॉपिक जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स. उसमें सारे ये ऑपरेटर्स, ये जो सारे ऑपरेटर्स है एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू. ठीक है? Okay. Anyone is having any confusion as of now? Okay. Right? All clear? This arithmetic operator, comparison operator, ये clear है? यस. Yes. Right? ऐसा अगर जावा की बुक वगैरह देखोगे तो they will give you 5-7 categories अलग अलग दे देंगे. कोई miscellaneous कैटेगरी बनाएंगे, कोई मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर कोई रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं. राइट? सो बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर बनाएंगे बट विल कीप इट सिंपल. हम 3 कैटेगरी बनाएंगे. सबसे पहले अरिथमेटिक, दूसरा कौन सा है? कंपैरिजन. ठीक है? तो तीसरा we having logical. We have logical operator.
तो लॉजिकल ऑपरेटर में 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं गाइस। कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं? तो द फर्स्ट थिंग, एनीवन इज हैविंग एन आइडिया? And or not यस, करेक्ट। एंड or not. करेक्ट। सो एंड जब हम बोलेंगे तो बेसिकली गाइस एम्परसेंड साइन, वेरी सॉरी मेरा एम्परसेंड थोड़ा सा उल्टा आता है, दैट दिस एम्परसेंड। नेक्स्ट वी हैव और ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल और, ठीक है। एंड थर्ड कौन सा था गाइस? Not. यही जो है ना, यही से। तो इसको थोड़ा सा अभी हम इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं, फिर इजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ यू गाइस आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ये वर्क कैसे करता है। सो द सिंपल स्टोरी या फिर सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस, कि इसके आपको ऑपरेशन समझने पड़ेंगे। सो हियर एक सिंपल सा एग्जांपल गाइस, इफ आई एम हैविंग A, I'm having B, and this is my result. A, B, and result. Let's say जो bit बोले थे ना हमने, bit क्या होता है? It can be 0 और it can be 1 1. So let's say दोनों bit A भी 0 है और B भी क्या है? 0. 0 A मेरा 0 है और B कितना है? 1. 1 A है मेरा 1 और B कितना है? 0. And दोनों है 1 and 1. So in this case, अगर मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ गाइस? लॉजिकल एंड। तो एंड ऑपरेटर रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 0 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी 0 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? ये कौन सा था गाइस? And लॉजिकल एंड, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट और रिप्रेजेंट्स टू द एडिशन, और किसको रिप्रेजेंट करता है? एडिशन। गाइस यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ बट कंफ्यूज मत होना, ये मेरा एंड ऑपरेटर का है और ये मेरा लॉजिकल और ऑपरेटर का है। सो यहाँ पे अभी मैं 0 को 0 से प्लस करूंगा, 0 प्लस 0, आंसर विल बी 0 0, राइट? 0 1 1 2 1 plus 0 1 1 1 plus 1 2 होता है, नॉर्मली 2 होता है बट वी लाइक but 1 ठीक है। हाँ ये yes कुछ डाउट इन दोनों में? नो और ये है आपका नॉट ऑपरेटर या फिर इन्वर्टर ऑपरेटर। अगर आपने इसको 0 दिया, 0 को इन्वर्ट करके वो 1 बना देगा। अगर आपने इसको 1 दिया, 1 को इन्वर्ट करा के आपको वो क्या दे देगा? 0 सिंपल, ठीक है। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Yes, Avinash. यस, Siddharth? About that 1 plus 1 is equal to 1, that I was not understanding. Okay, 1 plus 1 you mean 2 होना चाहिए, right? हाँ, right, right. Okay. So generally हम सिद्धांत जब हम 1 plus 1 करते हैं, not normal addition, ये बाइनरी एडिशन है, राइट? तो बाइनरी एडिशन में क्या होता है? 1 plus 1 तो वो 2 होता है और 2 को 1 and 1 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली we will be having 1 as an remainder and 1 will go to my carry. Okay. 1 कैरी में जाता है और कैरी फॉरवर्ड होता है अगले बीट पे।
तो उसको वैसे कंसीडर नहीं करते हैं। तो मतलब इन लॉजिकल टर्म 1 + 1 2 होना चाहिए था, बट उसको थोड़ा सा अरिथमेटिक टर्म में आप इतना ही समझना कि जो आंसर हम लाइक रिमाइंडर जो हमें बच जाता है, फिर आंसर जो बच जाता है, दैट आंसर एज एन आंसर इटसेल्फ, एज एन रिजल्ट इटसेल्फ। ठीक है, वी विल नॉट कंसीडर एज एन कैलकुलेशन। थोड़ा सा है मतलब बस इतना सा याद रखो कि इसको मल्टीप्लाई कर देगा और इनको एडिशन कर देगा। जब बस 1 + 1 को याद रखो, यू हैव टू राइट 1 इटसेल्फ, नॉट 2। Okay. Yeah. मतलब है उसमें बहुत सारी चीजें, और थोड़ा डिटेल जाएंगे ना तो यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग एज वेल। और किसी चीज को किसी लोग को बोरिंग भी लग जाता है, सो आई एम नॉट गोइंग दैट डीप, मतलब बिकॉज उसका हमें सिर्फ लॉजिक समझना है। वंस द लॉजिक इज क्लियर, डन, और कुछ नहीं। Okay. Yeah. And now guys, as I said, 0 is going to represent false, false and 1 is going to represent true, True. true। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से समझ सकते हो। 0 को आप false बोल दो, इसको भी आप false बोल दो, it will give you a false। This is also false। 0 को आप false बोल दो, इसको true बोल दो, this will give you a false, this will give you a true। ठीक है, इसको आप true बोल दो, इसको false बोल दो, इसको false बोल दो, this will give you a true। This is true, this is true। In this case, Siddhant, this will be true and this will be also true। Simple। Yeah. You cannot put TT, 2 times 2 T you cannot put, that's why that is true। ठीक है, हाँ. सिंपल। मतलब अगर बाइनरी 0 और नल में नहीं समझता, उसको ट्रू एंड फॉल्स में समझना पड़ता है। ठीक है, हाँ. so this is what actual like our लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, जैसे लाइक आदित्य सेड एंड जैसे हमने डिस्कस किया, जब हम लूप यूज करेंगे, फॉर लूप, इफ वगैरह, लाइक कंडीशन यूज करेंगे, दैट टाइम यू विल हैव क्लियर आइडिया कि ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे फिर से एक बार इसको रिवाइज करेंगे, विल हैव अ स्मॉल ग्लिम्स एंड देन हम उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। गोइंग बाउंसर गाइस, थोड़ा आंसर क्या क्या ये ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, 0 क्या है, 1 क्या है, या तो क्या, नो इश्यूज। विल ट्राई टू समराइज अगेन, फिर एक बार समराइज कर सकते हैं इफ एनीवन इज हैविंग डाउट। गाइस ठीक है, wait guys, like as we have small batch, as I said, I'll be interacting with you personally। सबसे personally, like मैं सबको like by name call करूँगा, don't take me personally। But that's how like we can keep this as an engaging or interesting। कुंदन, कुछ डाउट है? No, sir. Avinash, Avinash, Yes। that the inverter operator जो है, जो थर्ड वन है, हाँ, तो हमने देखा कि ये जो हर ऑपरेट मतलब अरिथमेटिक और सब में एक मतलब एक ही सिंबल यूज हुआ है, हाँ, yes, तो yes। तो इसका उसमें दूसरा नहीं है, like to be honest with you, ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स बनाता है और फॉल्स को ट्रू बनाता है। थोड़ा सा प्रोग्राम में जब आएंगे ना, तो हर बार उसका लॉजिक चेंज हो जाएगा। किस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो ना, बेस्ड ऑन दैट इट इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, मतलब जैसे अपन तीनों है तो कोई दूसरा सिंबल मतलब यूज करना चाहिए सर। आपको इसको डायरेक्टली आप ऐसे समझो कि इसको लॉजिकल एंड बोल दो, इसको लॉजिकल और बोल दो, इसको लॉजिकल नॉट बोल दो। सिंपल ऐसे। Okay. ठीक है, नॉट ऐसे लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड हाँ, अभी आएगा कंफ्यूजन, बट वंस वी स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कभी हम मॉड्यूलस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, कभी थोड़ा सा हम उसको नॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन, डोंट वरी। ठीक है, एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? No. Sure guys, तो like we can discuss or otherwise we will wind up। मतलब so sir, yes Aditya, ये लॉजिकल ऑपरेटर, डू यू माइंड एक्सप्लेनिंग इट टुमारो अगेन, like by any chance?
जस्ट लॉजिकल ऑपरेटर पार्ट, बाकी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट? ये वाला पार्ट बोल रहे बस हैं, लॉजिकल, ये वाला पार्ट, हाँ हाँ हाँ, लास्ट वाला डेफिनेटली हाँ, हम एक बार वैसे भी रिवाइज कंपैरिजन के बाद वाला, एग्जैक्टली, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड कंपैरिजन सारे ऑपरेटर्स हम एक बार डिक्लेयर, मतलब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है? डोंट वरी। ओके ओके, Guys, if you have any queries, let me know now. Otherwise, we can stop over here so that we can start freshly. हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे. Then we'll go, as I said, कुछ basic terms आपको identify करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. Once you are ready, we'll start with the actual programming. ठीक है? So और एक दो दिन आपको और जाएंगे to finish basics thing. एक बार अविनाश, इसके नोट्स अवेलेबल होंगे कि नहीं? I'll be dictating as I said. आपने नोट डाउन नहीं किया था ना? किया मैंने नोट डाउन, लेकिन मतलब जैसे प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर नोट्स, मतलब why I'm not giving notes, no, फिर वो स्पून फीडिंग हो जाएगा पूरा, मतलब जैसे कॉलेज में नोट्स मिलते थे, फिर नोट्स जरूरत लगे तो पढ़ेंगे, उसका मीनिंग भी नहीं पता होगा. I don't want you write it down in your own words. उसका लॉजिक कभी चेंज नहीं होने वाला है. The wordings can be changed. The logic should be right. I'm not going to provide you any physical notes. To be honest, guys, mark this word. Why I don't want to provide you the notes? You should prepare your own notebook, and ये own notebook आपको throughout आपके life में use होगा. No matter आप कौन सा programming language use करने वाले. It can be Python, as I said. It can be Node.js. It can be JavaScript. कोई भी language in future आप adopt कर लो. ये notes आपको use करेंगे. Like 90-95% आपको वही concept मिलेंगे. बस syntax change हो जाएगा. ओके, Logic will remain same. ठीक है? That's why I want you to prepare your own notes. And जब भी मतलब अभी थोड़ा ठीक है, थोड़ी देर में हम like screen share करेंगे, programs करेंगे. So that time I will post these screenshots of programs. ठीक है? Okay. Alright, good to go. Avinash, this is about Java. Like we are learning Java right now, right? Right. Okay. Yeah, I'm talking about Java, and there is manual automation lecture. Manual lecture will be there after ये lecture के बाद manual का lecture होगा. So manual का आपको printed notes मिल जाएगा. Printed मतलब like Mega will prepare notes की जिसमें जो भी definitions, point, examples या फिर जो documents हमें लगेंगे, everything will be there in documentation. ठीक है? Okay. Yeah. I won't be providing anything for at least for Java and for Selenium because this is what कि आपको adopt करना है. I'm sure, very sure, you guys are from non-technical background या फिर programming बहुत पहले छूट गया है. 3, 4, 5 years बाद आप ये करते थे, right? So, हाँ, like basic से start है. You should prepare your own. ठीक है? Okay.